خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب تک میرا سلام پہنچے. آئیے بلند آواز سے جواب دیا کریں. آپ کافی بیدار کلیسیا ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ نے بڑی خوبصورت ستائش کی اور کافی دیر سے کر رہے ہیں اور تھک بھی گئے ہوں گے. نہیں تھکے؟ پریز دی لارڈ. پاسٹر مقصود صاحب کا, پاسٹر اسلم صاحب, پاسٹر ڈینیل صاحب کا, پاسٹر پطرس صاحب کا اور ان کی تمام تر کیبنٹ کا, تمام لیڈرشپ کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے واجب سمجھا کہ ہمیں بلائیں اور ہم آپ کے درمیان میں کلام کی خدمت سر انجام دیں. اشتیاق بھائی یہ پلر آ رہا ہے بیچ میں؟ آ رہا ہے یہاں ٹھیک. اور آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ خدا ان کے کلام کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اب چونکہ وقت کلام کا ہے تو مناسب یہی ہوگا ہمارے لیے کہ ہم یہ چلنا پھرنا چھوڑ کر کلام کی طرف دھیان دیں. آمین آمین. سننا چاہتے ہیں کلام؟ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. آمین بولیے آمین. بولے ہاللویا ہاللویا. بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی پریز دی لارڈ. باقی آپ کو زندہ ہو گئے. سیمینار یا کانفرنسز جو ہے یہ ہمیشہ کلیسیاؤں کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف بڑھوں میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. سیمینارز ہیں, کانفرنسز ہیں یا ٹیچنگ سیشنز کوئی بھی کیوں نہ ہو, وہ ہمیشہ کلیسیاؤں کو بیدار کرنے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اگر ہم سیکھنے والا رویہ نہیں رکھیں گے, ہمارا سیکھنے والا مزاج نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے پھر ان تمام تر پروگرامز کا کوئی فائدہ نہیں. چرچ نیڈ ٹو بی ویری اٹینٹیو. چرچ کو ہمیشہ انہماک کے ساتھ سننے والا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ جانے مذہب سے کب آ جائے جو ہماری زندگیوں کو یکسر بدل کے رکھ دے. تو ہمیشہ ریسیپٹیو رہیں, تیار رہیں. کچھ نہ کچھ نیا آنے والا ہے, کچھ نہ کچھ ہمارے لیے برکت کا آنے والا ہے. تیاری کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, جہاں فشانی کے ساتھ سنیں, کیونکہ ہمارا مخالف ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم سنیں. اب اگر کوئی گزرتا تو سامنے سے برائے مہربانی نہ گزرے, کیونکہ یہ پروگرام کیپچر ہو رہا ہے تو مووی میں ڈسٹربنس آئے گی. اور کیونکہ یہ آپ ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ ملک پاکستان کی کئی کیبلز پہ یہ پروگرام کچھ بعد میں چلائے جاتے ہیں, تو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ شدرا بنالا کہ کلیسیا جو ہے یہ انتظام کو شاید نہیں سمجھ پا رہی. اس لیے آپ بہترین طریقہ سے رسپانس دیں اور میرا ایمان ہے آج آپ برکت ضرور پائیں گے. آمین. کتنے لوگ چاہتے ہیں کلیسیا ترقی کرے؟ ہاتھ کھڑا کریں. پریز دی لارڈ. کلیسیا کی ترقی کے لیے ہم سب خواہش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کلیسیا جو وہ ترقی کرے. تو کیا کلیسیائی ترقی میں ہمارا کردار, جو کچھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا ہم لیڈرز کو دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا ہم کلیسیاؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو کیا ہم ویسا ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے؟ ہم امید کرتے ہیں, ہم ہمیشہ توقع کرتے ہیں کہ چرچ کو ایسا ہونا چاہیے, چرچ کو ایسا ہونا چاہیے, یہ چرچ ایسا ہونا چاہیے, مگر ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. We never think on this. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ میں فرداً آپ کلیسین. تو جب ہم اپنا کی رول پلے کریں گے تو لامحالہ چرچ ویسا ہو جائے گا جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور نہ صرف ویسا ہوگا بلکہ وہ بائبلی چرچ ہوگا, یعنی کتاب مقدس کے مطابق جیسی کلیسیا ویسی ہو جائے گی. تو آج سیشن کی ابتدا پر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں, ہمارا مضمون ہے صلہ بردار. بولیے گا ذرا, صلہ بردار. کیا مضمون ہے جی؟ صلہ بردار. اسے انگلش میں کہتے ہیں آرمر بیئرر. صلہ بردار. ہو سکتا ہے اسے
कलीसियाओं की बढ़ोतरी या कलीसियाओं में मजबूत लीडरशिप क्यों पैदा नहीं हो रही? क्यों कलीसियाओं में हम जैसी क़यादत देखना चाहते हैं वैसी पैदा हो नहीं रही? तो हमारा मजमून है सिला बरदार। सिला बरदार का मतलब है वो शख्स जो अपने सिपा सलार के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने मालिक की जगह लड़ता है, अपने मालिक की जगह वो सिपर और ढाल पकड़ता है और उससे बचाता है। हम मजीद आगे चल के इसकी वापसी के लिए मतलब है सिला बरदार जो है, सुनिए ध्यान से, सिला बरदार आर्मर बेयरर जो है वो अपने मालिक, अपने सिपासलार, अपने राहबर, अपने रानुमा के साथ हमेशा हमेशा रहता है और वो उसे बचाता है। उसके हाथ में ढाल होती है, उसके हाथ में सिपर होती है, उसके हाथ में तलवार होती है। वो अपने मालिक की जगह लड़ने वाला होता है। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे सिला बरदार के ताल्लुक से। हम जो कलीसियाई लोग हैं, हम जो कलीसिया में हमारा एक अहम किरदार है, हम कहते हैं कि मैं मसीही हूं, मैं उस चर्च में जाता हूं, मैं उस चर्च में जाता हूं, मेरे रानुमा का नाम ये है, मेरे काजी साहब का नाम ये है, हम अमूमन कहते हैं। और फिर इसके साथ साथ हमारा रवैया जो है वो कैसा होता है, आइए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। आइए अपनी सलाह के लिए देखिए मेरे साथ पहला सैमुएल उसका 14वां बाब, उसकी पहली एक आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। सैमुएल नबी की पहली किताब उसका 14वां बाब, उसकी पहली एक आयत से लेकर 14वीं आयत तक का मुताला करेंगे। और मैं चाहूंगा कि भाई नवीद हमारे पास मौजूद है, पास्टर नवीद, वो सामने इधर खड़े होकर इस हवाला को पढ़ दीजिएगा और सारे सुनिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम बार बार इसे पढ़ें ताकि कलाम में रुकावट ना आए। जी, कलाम हक में यूं लिखा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा कि आ हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चले। पर उसने अपने बाप को ना बताया और साउल जिबा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकय्यम था और करीबन 600 आदमी उसके साथ थे। कितने आदमी उसके साथ थे? एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था, उसका क्या था? उसका सिला बरदार था, उससे कहा कि आओ हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चले। पर उसने अपने बाप को ना बताया। यहां पर दो लोगों का जिक्र है, यूनतन और यूनतन के साथ उसका सिला बरदार। यूनतन अपने सिला बरदार से कहता है कि देख, हम फिलिस्तियों से जंग करना चाहते हैं, हम फिलिस्तियों से लड़ना चाहते हैं, हम उन पर गालिब आना और फतह पाना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि तू मेरे साथ चल और हम दोनों आगे बढ़ेंगे, हम दोनों चलेंगे और फिलिस्तियों को मार मिटाएंगे। मगर इसके साथ साथ सुनिएगा, यूनतन ने कहा कि देख, तू मेरे साथ जाएगा और तुझे मेरे साथ चलना है। मगर एक बड़ी खूबसूरत यहां पर बात लिखी हुई है कि लिखा है, मगर उसने अपने बाप को ना बताया। किसे ना बताया? उसने अपने बाप को ना बताया। आगे छठी आयत से पढ़िएगा जी। सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था, यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा आ हम उधर उन नामक दोनों की चौकी पर चले। उससे कहा कि आ हम
मुमकिन है कि खुदावन हमारा काम बना दे, मुमकिन है कि खुदावन हमारा काम बना दे, कि खुदावन के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिए से बचाने की क्योंकि खुदावन के लिए बहुतों और थोड़ों के जरिए बचाने की कैद नहीं है। वो थोड़ों से भी बचा सकता है और वो ज्यादा से भी बचा सकता है, ये उसकी कुदरत है। उसके लिए कोई कैद नहीं है कि हम दो जाएंगे तो शायद हम जीत के नहीं आएंगे। जी आगे। उसके सिलाबरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल। जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। अब सिलाबरदार और यूनतन की बातें सुनिएगा। यूनतन ने कहा कि सिलाबरदार मेरे साथ चल, मगर यूनतन ने अपने बाप को ना बताया। उसने कहा देख हम फिलिस्तियों पर गालिब आना चाहते हैं और फिलिस्तियों को हलाक करना चाहते हैं, उन पर फतह पाना चाहते हैं और तुझे मेरे साथ चलना है। और सिलाबरदार का आगे रवैया क्या है? सिलाबरदार उससे कह रहा है, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रहनुमा, सुन, जैसा तू चाहता है वैसा कर। देख मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूं, जो तेरे दिल में आता है वैसा कर दिया पड़ेगा। तब यूनतन ने कहा, देख हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे। तब यूनतन ने कहा कि देख हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे और अपने को उनको दिखाएंगे और अपना आप दुश्मन को दिखाएंगे। अगर वो हमसे ये कहें, और अगर हमारा दुश्मन यानी फिलिस्ती हमसे ये कहें कि हमारे आने तक ठहरो, कि हमारे आने तक ठहरे तो रहो, हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे तो हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। और अपने दुश्मनों यानी फिलिस्तियों के पास नहीं जाएंगे। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ, मगर अगर वो ये कहते हैं फिलिस्ती कि हमारे पास तो आओ, तो हम चढ़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? उन्हें धोखा देकर उन पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदावन ने उनको हमारे साथ कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि खुदावन ने फिलिस्तियों को यानी हमारे दुश्मनों को हमारे हवाले कर दिया। जी, और ये हमारे लिए निशान होगा। और यही बात हमारे लिए निशान होगी। फिर इन दोनों ने अपने आप को फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को फिर दिखाया। दोनों ही लोगों ने, यूनतन और उसका सिलाबरदार, दोनों, इन दोनों ही लोगों ने अपने आप को फिलिस्तियों की चौकी के करीब जाकर अपना आप दिखाया। जी आगे। फिलिस्ती कहने लगे, देखो ये इब्रानी। और फिलिस्तियों ने जब दूर से देखा कि ये दो लोग झांक रहे हैं, तो कहने लगे कि ये दो अबरानी जो हैं, उन सुराखों में से जहां वो छिप गए थे बाहर निकले आते हैं। जहां वो छिपे हुए थे वहां से बाहर निकल रहे हैं। और चौकी के सिपाहियों ने यूनतन और उसके सिलाबरदार से कहा, और चौकी पर यानी फिलिस्तियों की चौकी पर, मुखालिफों की चौकी पर, दुश्मनों की चौकी पर जो सिपाही खड़े थे, तैनात थे, उन्होंने कहा किससे? सिलाबरदार से और किससे? भी यूनतन से कहा कि हमारे पास तो आओ। जी, हमारे पास आओ तो सही, जी, हम तुमको एक चीज दिखाएं। तो यूनतन ने अपने सिलाबरदार से कहा, अब दुश्मन क्या कह रहा है? हमारे पास आओ तो सही, हम तुम्हें कोई चीज दिखाएं। जी, अब मेरे पीछे दिखाएं। तो यूनतन ने अपने सिलाबरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला आ, क्योंकि हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो यूनतन ने अपने सिलाबरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा आ। जी, क्योंकि खुदावंद ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया है। क्योंकि खुदावंद ने फिलिस्तियों को, मुखालिफों को इस्राएल के हाथ में कर दिया है। जी, और यूनतन अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया, और यूनतन अपने हाथों और अपने पांव के बल चढ़ गया, और उसके पीछे पीछे उसका सिलाबरदार था, और उसके पीछे पीछे उसका सिलाबरदार था, और वो यूनतन के सामने गिरते गए, और वो यूनतन के सामने गिरते गए, और उसका सिलाबरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। और उसका सिलाबरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खून रेती जो यूनतन और उसके सिलाबरदार ने की, और ये पहली खून रेती थी जो यूनतन और उसके सिलाबरदार ने की थी। करीबन 20 आदमियों की थी, और ये 20 आदमियों की थी जो कोई एक बेग जमीन की रेगारी में मारे गए, जो एक बेग जमीन की रेगारी में मारे गए। आमीन जी, थैंक यू भाई। यहां पर हमने एक स्टोरी पढ़ी है। कितने लोगों का जिक्र है? 2 लोग हैं, सिलाबरदार और दूसरे नंबर पर कौन है?
इससे सीखेंगे। 7 तरह की बातें इस सिलाबरदार की जिंदगी की हैं। हम यूनिटन की बात नहीं करेंगे, हम सिलाबरदार की बात करेंगे। आप जितने लोग बैठे हैं, जितने हाज़रीन यहाँ पर बैठे हैं, आप सिलाबरदार की तरह हैं। आप अपने चर्चिस में अपने लीडर्स के साथ कैसे हैं, आज हम सीखेंगे। हाउ डू वी डील विद आवर लीडर्स, हम अपने लीडर्स के साथ कैसा रवैया रखते हैं, हमें सीखने की जरूरत है। वी नीड टू लर्न कि हमारा मिजाज क्या है, हमारा रवैया क्या है, हमारा किरदार क्या है, हमारा अमल क्या है, हम कैसे सुनते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम किसके पीछे चलते हैं और किसके आगे चलते हैं, हम अपने मालिक के लिए क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारे जज्बात क्या है, हमारी रूहानी हालत क्या है, हमारा रूहानी आलम क्या है, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर, अपने लीडर के साथ, अपने रहनुमा के साथ, अपने पासवान के साथ। एंड वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की जरूरत है कि हम कैसे हैं। यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो जिक्र है यूनिटन का, और यूनिटन के साथ उसके सिलाबरदार का। सिलाबरदार का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया, और ये कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई हादसा नहीं है। ये भी मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है कि ये इसलिए भी नहीं लिखा गया ताकि अहमियत जो है वो यूनिटन की हो। यूनिटन पर फोकस है और लेसन जो वो सिलाबरदार के मार्फत हम तक पहुंचेगा। 7 बातें हैं। पहली बात, सबसे पहली बात, एक सिलाबरदार को, एक शागिर्द को काबिले यकीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा है, जो ही हम शुरू करते हैं, लिखा है कि यूनिटन ने अपने सिलाबरदार से कहा, आओ हम उधर चले अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, उनकी चौकी पर हमला करें। तो लिखा है कि उसने अपने बाप को नहीं बताया। उसने किस पर ट्रस्ट किया? यूनिटन ने अपने सिलाबरदार पर ट्रस्ट किया। किस पर ट्रस्ट किया? उसने अपने शागिर्द पर, अपने उस सिलाबरदार पर, अपने साथी पर ट्रस्ट किया, यकीन किया, बजाय इसके कि वो अपने बाप पर यकीन करता है। हमारी खिदमत में रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते। खिदमत में वो बड़ा है जो सिलाबरदार है, खिदमत में वो अहम है जो शागिर्द है, खिदमत में वो अहम है जो जान देने के लिए तैयार है, खिदमत में वो अहम है जो अपने जज्बात को अपने मालिक के हवाले करता है, खिदमत में वो शख्स अहम है जो रूहानी आलम में अपने बाप की बात को समझता और अपने मालिक की बात को समझता है। खिदमत में उसकी अहमियत है। यूनिटन ने सिलाबरदार को अहमियत दी, ना कि अपने बाप साउल को। उसने मुनासिब नहीं समझा कि मैं साउल को बताऊंगा। उसने कहा कि नहीं, आई नीड टू हैव माय सिलाबरदार विद मी, मुझे अपने सिलाबरदार को अपने साथ रखना है। इसका मतलब था कि यूनिटन को उस सिलाबरदार पर मुकम्मल यकीन था। इसी सबब से उसने उसका चुनाव किया। आज आप कलीसियाई लोग हैं, जब किसी बड़ी फतह के लिए निकला जाता है, किसी बड़े मार्के के लिए निकला जाता है, तो हमेशा उन लोगों का चुनाव किया जाता है जो काबिल यकीन होते हैं, जो काबिल यकीन है, जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। आप अपनी खिदमत में देखें, आप अपनी निशिस्तों पर बैठे हुए देखें कि हमारा पासबान, हमारा रहनुमा, हमारे पादरी साहब, हमारे बड़े जो हैं, हम पर कितना एतकाद करते हैं। अगर वो एतकाद नहीं कर रहे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें सीखने की जरूरत है कि हम में कोई कमी है। क्यों वो हमें साथ नहीं ले रहे, क्यों वो हमें बता नहीं रहे, क्यों वो हमें भेद की बातें नहीं बता रहे जो वो अपने बाप को नहीं बता रहे। यूनिटन ने अपने बाप को एक तर्स कर दिया और उसने सिलाबरदार पर एतकाद किया। मेरी बात को समझ नहीं आता है? हाथ खड़ा करके बताइए, समझ आ रही है? तो सिलाबरदार का वो काबिल यकीन होता है। यहां पर हम किस पर एतकाद कर सकते हैं, किस पर भरोसा कर सकते हैं? उस शख्स पर, उस आदमी पर जो काबिल एतमाद नहीं है, जिसे कोई बात बताई जाए तो सैकड़ों को जाकर बता दे। मेरी बात समझ रहे? आज चर्चिस के अंदर क्या मसला चल रहा है? पादरी साहब जिसे साथ रखते हैं वो ही उन्हें लता बांट रहे होता है।
شروع کر دیا پادری صاحب نے کیا پادری صاحب نے کیا وہ پادری صاحب کو اتنا پیسہ آتا پادری صاحب اے کر رہے پادری صاحب ایویں دے دیں تو یہ صلہ بردار کیسے ہیں آج کیا ہم قابل یقین لوگ ہیں ہم کیوں ترقی نہیں کر رہے ہم کیوں بڑھ نہیں رہے چرچز کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہے ہمارے روحانی طور پر جسمانی طور پر معاشی طور پر ہم کیوں جو ہے وہ پیچھے کے پیچھے رہ رہے ہیں وجہ سبب یہ ہے ہم قابل یقین نہیں ہیں ہم نے کمی ہے کسی بات کی اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز کو ہم پر اعتقاد نہیں ہے جبھی تو وہ ہمیں اپنا رازدان نہیں بناتے جبھی تو وہ کھل کے ساری باتیں ہمیں نہیں بتاتے میری بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا let me tell you a very very clear thing جتنے آپ سنسیئر ہیں جتنے آپ مخلص ہیں اتنا لیڈر آپ کا آپ پر واضح ہے آپ جتنا اپنے آپ کو اپنے خادم کے حوالے کرتے ہیں اتنا وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں ہم مزید اس میں آگے بڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ چرچز کو آج آپ دوسری اقوام میں دیکھیں گے ان کے جانشین پیدا ہوتے ہیں بڑے خوبصورت بڑے لیڈر کے بعد ان کے پیچھے لیڈرز کی ایک لائن ہوتی ہے بڑی کہ اس کے بعد یہ آ جائے گا اگر یہ چلا گیا تو اس کا نعم البدل یہ ہے اس کا نعم البدل یہ ہے اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے یہ بھائی جائے گا جمشید جائے گا تو اس کے پیچھے کوئی اور آ جائے گا کیونکہ جمشید نے جانشین پیدا کیا ہے جمشید کے بعد جاوید آ جائے گا جاوید کے بعد کوئی اور آ جائے گا جانشین پیدا کیا ہے آج جانشین جو ہے یا صلہ بردار جو ہے وہ قابل یقین نہیں ہے we need to be trustworthy ہمیں قابل یقین ہونا ہے کہ ہمارے پادری صاحب جو ہے وہ ہم پر یقین کریں یسوع مسیح کو اپنے 12 شاگردوں پر اعتقاد تھا نا اعتقاد اس نے 12 کا چناؤ کیا اسے 12 پر ہی اعتقاد تھا اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اسے تو یہودا پر بھی اعتقاد تھا اگرچہ وہ اپنی الوہیت میں جانتا تھا کہ یہودا کیا کرنے والا ہے اسے معلوم تھا کہ یہودا تھیلی کا چور ہے اسے معلوم تھا کہ یہودا یہ کام کر رہا ہے اسے معلوم تھا کہ یہودا میرے بابت پلان بھی بنا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے مگر یہودا ٹرسٹ وردی تھا نہیں مگر پھر بھی آپ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے ان 12 کے 12 کو اپنے پاس ساتھ رکھا اپنی خدمت کے دوران یسوع مسیح نے 11 کے ساتھ یہودا کو بھی رکھا اسے کک آؤٹ نہیں کیا میری بات کو لیڈرز ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں جہاں پر ہم صلہ بردار کی بات کر رہے ہیں وہاں پر لیڈرز کی بھی بات کریں کہ بعض اوقات لیڈرز میں بھی کمیاں ہیں کہ جڑے بندے سے تھوڑی سی خرابی ہوتی ہے ان کے اندر یار ان چڑی کرا دو یا اسے نکالو یہاں سے باہر اسے کسی نہ کسی طرح فیلوشپ سے آؤٹ کرو ایسا نہ ہو کہ یہ ان مقامات پر آئے جن پر نام ہے اگر آپ کے صلہ بردار میں اگر آپ کے لوگوں میں کمیاں بھی ہوں تو برداشت کریں یسوع مسیح نے یہودا کو اپنی خدمت کے انتہا تک ساتھ رکھا اگرچہ یہودا اس کے مخالف تھا اگرچہ یہودا جو ہے وہ پلان بنا رہا مگر یسوع مسیح نے اسے کک آؤٹ نہیں کیا سنیے گا اسے کک آؤٹ نہیں کیا نہیں کیا اور اس کے پیچھے بات یہ نہیں تھی کیونکہ یسوع مسیح ایک اچھا لیڈر ہے وہ موقع دے رہا تھا کہ میں اپنے تئیں یہودا کو پورا موقع دوں گا اگر وہ بچنا چاہتا تو بچے میرے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ نہیں ہونا ہے یہودا نہ ہوگا کسی اور کے ذریعے ہو جائے گا جو اس کے حق میں لکھا ہے جو یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا تھا مگر یہودا نے اس ہونے والے کام کو اپنے ذریعے ہونے کی دعوت دی ہے مگر یسوع مسیح نے ہی gave him very much space اسے بہت جگہ دی کہ آپ بدل جاؤ it's up to you آپ سکھاتے رہے آپ سمجھاتے رہے آپ تعلیم دیتے رہے آپ کے لوگ بدلتے ہیں نہیں بدلتے آپ کا کام ہے سکھانا آپ اپنے کک آؤٹ نہ کریں بلکہ ہمیشہ ساتھ رکھیں ان کے حالات ان کے کام ان کے منطقی انجام تک خود لے جائیں گے آپ نہ انہیں لے کر جائیں اس صلہ بردار کو یونیتن نے ساتھ رکھا ہے کیونکہ اسے اس پر یقین تھا اور اس لیے میں آپ کو صرف یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ قابل یقین بنے بہنیں ہیں بھائی ہیں بزرگ ہیں آپ چرچ کیبنٹ کے لوگ ہیں آپ قابل یقین بنے کیا بنے پھر کیا ہوگا پھر ہر بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی جو چھپی ہوئی ہے جو ڈھکی ہوئی ہے جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا ہو سکتا ہے جو آپ کو بتایا جائے کسی
को ना बताया जाए। और मुझे मालूम है हम अपनी खिदमत के दौरान बहुत सी बातें अपने शागिर्दों को बताते हैं, हमारे माँ बाप को पता भी नहीं होता, और हम नहीं कहते भी हैं कि ये आपका मामला नहीं है कि आप हर बात जाने, हर बात जानना आपका काम नहीं है। आप हमारे दूसरे भाइयों को बताएंगे, बहनों को बताएंगे, बीजों को बताएंगे, जो बात नहीं बताने वाली वो भी आगे चली जाएगी। तो हम उन्हें बताएंगे जो हमारे साथ साथ रहते हैं। आमीन। तो फौज जो है वो किधर है? हमारे लोगों में। ट्रस्टवर्दी बने कि आपके लीडर आप पर यकीन करें कि ये कुछ करने वाला है, ये मेरे लिए कुछ करेगा, तो फिर जो है वो बेहतरी जन्म लेगी, वरना नहीं। दूसरी बात ये, सिला बरदार को अपने रहनुमा के हुक्म को अव्वल दर्जा देना है। कौन सा दर्जा देना है? सिला बरदार जो है, आपने देखा कि यूनतन ने उससे क्या कहा? यूनतन यूं नजर आ रहा है कि उसने ऑन ऑफ रखा हुआ है। ऑन ऑफ का मतलब समझते हैं? ऑन करें लाइट जल जाए, ऑफ करें बुझ जाए। लीडर्स आर नीड टू बी लाइक दिस, और सिला बरदार को भी ऐसा होना है। मेरी बात को समझिएगा। रहनुमा जो है बेसिकली ही ऑर्डर्स एवरी टाइम, वो हमेशा क्या देता है? क्या देता है? ऑर्डर देता है। और उसके हुक्म को सिला बरदार जो वो हमेशा सुनने के लिए तैयार रहे, ना सिर्फ सुनने के लिए तैयार है बल्कि उसे अव्वल दर्जा दे। कौन सा दर्जा दे? आप सोचिए कि हम अपने लीडर्स के अहकामात को अव्वल दर्जा देते हैं। जब वो हमसे कहते हैं कि ये करो, वो करना है आपको ऐसा होना चाहिए, तो क्या हम अव्वल दर्जा उन्हें देते हैं? नहीं देते। अगर मैं ईमान के साथ, यकीन के साथ कह रहा हूं, 18 साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए और मसबा की खिदमत करते हुए, मैंने ये सीखा है कि हमारे यहाँ फुकदान ही बेहतर लीडरशिप का इसलिए है क्योंकि हम अच्छे सिला बरदार नहीं, ना हम काबिल यकीन है और ना हम अपने लीडर्स के अहकामात को अव्वल दर्जा देते हैं। वो हमें कहते हैं दाएं जाओ, हम बाएं जाते हैं। वो कहते हैं आगे जाओ, हम पीछे जाते हैं। वो कहते हैं बैठ जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। हमारा ऑन ऑफ जो है वो खराब हो गया है। हमारा ऑन ऑफ क्या है? हमारे कंट्रोल में या हमारे रहनुमा के कंट्रोल में है? देखिएगा, अगर आप मुल्क पाकिस्तान में तब्दीली देखना चाहते हैं, अगर आप चर्चिस में तब्दीली देखना चाहते हैं, तो अपने आप को अपने दिन उस सिला बरदार की मानद बनाइए, उन लोगों की मानद बनाइए जो ऑन ऑफ होते हैं, जो हमेशा अपने लीडर्स के हुक्म को अव्वल दर्जा देते हैं, ना कि अपनी ख्वाहिशात को, ना कि अपने दिल की मर्जी को, ना अपने ज़हनी ख्यालों को, ना वो दूसरे लोगों की बातों पर कान लगाते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा जो है रहनुमा क्या कहते हैं। मगर हमारे यहां सबसे बड़ा मसला यही चल रहा है कि हम कहते हैं कि हुक्म तेरा मर्जी साडी, हुक्म तेरा मर्जी हमारी, हुक्म तू देगा हम नहीं करेंगे, चकमा देंगे। हम कहते हैं दराऊ कह दो, पैसा दराऊ कह देना आज मैं नहीं कर सकता, पैसा दराऊ सुझा देना मैं नहीं कर सकता। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ armor bearer we are, what sort of disciples we are? हम कैसे शागिर्द हैं? यीशु मसीह ने कहा पतरस मेरे पीछे हो ले, कि उसने हिलोजत की नहीं। इस सिला बरदार ने आगे से कुछ दलील दी। उसने क्या कहा? उसने कहा देख मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूं, जैसा तेरे दिल में आता है वैसा कर। इतने कहने पैसा तो समझ ही नहीं आएगी, इंज करो इंज होएगा ये काम, है ना? हम कहते हैं ऐसे करो, मुझे समझ आ ज्यादा आपसे। और आज यही प्रॉब्लम है चर्च में, जो लीडरशिप है ना, वो समझते हैं कैसी पादरी ना वो अच्छा कलाम सुना रहे हैं, सानू की जगह पे होना चाहिए, ये थे क्यों होता है? ये है ना, पैसा मांगो तो अच्छा मैं आप बोल देगा, पादरी ना हो तो अच्छा मैं कलाम कर ले, लोगों मैं गायन कर लिया, पादरी साहब ये तो छुट्टी कराओ, इतने मैं है ना। तो इससे क्या होगा? नतायज जो वो गलत निकलेंगे। इस सिला बरदार ने अव्वल दर्जा दिया अपने मालिक को, उसके हुक्म को उसने कहा देख मैं तेरे साथ हूं, जैसा तू कहता है वैसा कर। अपनी मर्जी जब तक हम करेंगे हम तब्दीली नहीं देखेंगे। अगर आप बड़े बड़े माल
آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے یہ سارا سلسلہ. پہلی بات کیا ہے جی؟ صلہ بردار کو کیسا ہونا چاہیے؟ قابل یقین. ساری جماعت بولے کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ سب سوچیں کیا میں قابل یقین ہوں؟ دوسری بات، صلہ بردار کسے حق درجہ دیتا ہے؟ کسے؟ اپنے مالک کے حکم کو ہمیشہ حق درجہ دیتا ہے. اس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ نہیں تیری مرضی پوری ہو نہ کہ. دیکھیں ایلیا کے ساتھ الیشا، موسیٰ کے ساتھ یشوع، یہ کیوں لوگ آگے آئے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے رہنما کے ساتھ وفادار رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، جب ایلیا تھا تو الیشا خدمت کر رہا تھا، لوگوں کی نبوتیں کر رہا تھا؟ بتائیے کر رہا تھا؟ نہیں. ایلیا نے جو معجزے کیے اس کی خدمت کے دوران کیا الیشا معجزہ دکھا رہا تھا؟ نہیں دکھا رہا تھا. جب تک موسیٰ تھا کیا یشوع ہاتھ اٹھا کے فتوحات دے رہا تھا؟ نہیں دے رہا. کیا وجہ ہے؟ انڈرسٹینڈ کریں اس سارے کلیے کو انڈرسٹینڈ کریں. جب تک آپ بھیجے نہ جائیں، جب تک آپ کو بھیجا نہ جائے کچھ نہ کریں، یا جب تک آپ کو حکم نہ دیا جائے تب تک کچھ نہ کیجیے. آج چرچ میں تبدیلی اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. ہمارا مالک کوئی نہیں ہے. ہم نے کسی کو رہنما نہیں جانا، ہم نے کسی کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کہنے دو تو کرنی ہو رہی اپنی. اور ہمارے ایک بڑے عام ایسے غلط جملے ہیں، سنو سب دی تے کرو من دی. سنو سب دی تے کرو من دی. بھائی سنن دی لوڑ ہی کی؟ بھائی سنن دی لوڑ ہی کی ہے کہ کرنی پھر تسی مان دی ہوئی ہے تے کیوں اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہے ہو؟ سنی جا رہے ہو تے کرنا کچھ بھی نہیں.